Good morning friends. I Professor Harsha Gangravane. Welcome back in my video lecture, and as you know I am going to teach you the subject in that is Core Java, and today my topic is how we can pass the parameter in the applet. Okay. Basically in my previous video lecture we just cover the topic that is nothing but the applet, how we can create an applet, how we can display the particular things on the applet, and what is the life cycle of applet, how it works, how it's executed that particular program. Okay, and how we can create an applet in Java code. So today's my topic, how we can pass the parameter or getting the input to that particular applet. So displaying the integer value as well as the how we can get the input from the user with the help of param tag. Okay, so this is my today's topic. So basically getting the input from the user, we have to use the param tag which is included in applet tag. Okay, so basically for that we have to create the applet, or we have to create the code for the applet, and we need to include the param tag. What is meant by the param tag? Param it is a tag which having two attributes. First attribute, it is nothing but the name, and second one, it is nothing but the value. The name indicates the identifier of as like the variable, whereas the value is nothing but the value of that particular identifier. So when we create the attribute name n1, this is nothing but the work as variable, and this Harsha, that means the value of that particular variable. It means it looks like that. Okay, so here we create and the here we create the variable name, that is nothing but the n1. So the n1 belongs the value, that is nothing but the Harsha. So param tag having two attributes. First attribute, that is nothing but the name, and second one is this value. Name indicates the variable name and value indicates the value of that particular variable. So how we can get this particular value? Look here, we have to include that param tag into applet tag only. That means when we create an applet program, we need to first create the applet one, and second one we need to create the HTML program. So HTML code. In that HTML code, when we write the applet tag, in applet tag we have to insert the param tag. मीन्स जितने आपको वेरिएबल या जितनी आपको वैल्यू उस पर्टिकुलर एप्लेट को पास करनी है, उतने परम टैग आपको यहाँ पे लिखना होगा. फिर ये जाएगी कैसे? दैट इज नथिंग बट द पैरामीटर वी आर पासिंग टू द एप्लेट. ओके, बट हाउ वी कैन गेट दैट और हाउ वी कैन रिसीव दैट पैरामीटर इन द एप्लेट? सो देयर इज अ वन मेथड, दैट इज नथिंग बट द गेट पैरामीटर. Get parameter, it is a method which is provided by the Java for getting the parameter. So remember that thing, when we use the get parameter method, we need to or we require to provide the same name which we provided here. Okay, so जो भी हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम देंगे, वही वेरिएबल का नाम, वही नेम जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करता है, वो एक पर्टिकुलर वेरिएबल आइडेंटिफायर क्रिएट करता है, वही हमें यहाँ पे देना पड़ेगा. That's why they identify the value of that particular thing. Okay, so यहाँ पे जो हम प्रोवाइड करेंगे गेट पैरामीटर में, उसी की वैल्यू वो क्या करेगा, इस स्ट्रिंग n में रिसीव करेगा, and then we can use that particular name or that particular thing for display. ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसे डिस्प्ले कर रहे हैं. कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं? बाय यूजिंग द ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड. ये मेथड किसकी है? ग्राफिक्स क्लास की. कहाँ लिखेंगे? पेंट मेथड में. सो वी हियर वी आर गोइंग टू यूज द graphics class method j.drawString for printing or displaying the name which is passed by the param tag into the applet, and we are getting that particular parameter from this. So we need to use the get parameter function for
acquiring for receiving the code or receiving the receiving the variable which is passed by the param tag. Okay, I just give the 2 or 3 example in my notes. Please we refer that particular notes for getting getting the input from the user, और ये जो टॉपिक है उसे बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, इसे और अच्छे से समझने के लिए वो प्लीज़ आप वो रेफ़र कीजिए ताकि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आएगा. वहाँ पे हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर का भी प्रोग्राम किया है, हाउ वी कैन डिस्प्ले दी इंटीजर वैल्यू फ्रॉम ऑन द एप्लेट. ओके, उसी का एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेने वाले हैं, पर उसके पहले गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र बाय यूजिंग द परम टैग, ये आपको समझ में आना चाहिए. उसके लिए बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है कि गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूज़र बाय यूजिंग परम टैग. परम इट इज़ नथिंग बट द टैग विच इज़ इंक्लूडेड इन अ एप्लेट टैग. तो एप्लेट टैग जहाँ पे लिखेंगे तो वहाँ पे हमें परम टैग का यूज़ करना पड़ेगा. तो ये एप्लेट टैग हम कहाँ लिख रहे हैं? HTML के फाइल में. तो HTML के फाइल में हमें परम टैग लिखना होगा. वेयर एज द परम टैग हैविंग 2 attribute, फर्स्ट इज अ नेम एंड सेकेंड वन इज अ वैल्यू. नेम इंडिकेट द आइडेंटिफायर, वेयर एज द वैल्यू इंडिकेट द वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर आइडेंटिफायर. Okay, how we can retrieve that particular thing? By using get parameter. Get parameter is a function which is provided by the Java, and by using this get parameter and identifier we can receive that particular value with the data type. अब ये जो आएगा वो string में ही होगा. Whatever we are passing and getting the value, those are the string type. यहाँ पे भी आएगा तो string type आएगा, और यहाँ पे भी हम get करेंगे वो भी string type ही होगा. That means the get parameter function returns the string type value. इंटीजर भी है तो भी स्ट्रिंग ही होगा. ठीक है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द वैपर क्लासेस. वैपर क्लासेस आर प्रोवाइडेड बाय द जावा which are used to convert the one data type into another data type, and there are so many classes provided by the wrapper classes. Those all are called as a wrapper classes because they are used for converting one data type into another one. So there is a one particular class that is nothing but the integer, float, double, strong, short. Those are the classes which is provided by the wrapper classes. Those are known as a wrapper classes, and those particular classes we use for converting one data type into another one. So here we can use the integer dot parse method. You remember that those method we are already used in our previous example. Those method we can use here for converting the string data type into integer. Okay, so we can use those method for converting our string type into integer, and then we can manipulate it, and then we can use those particular number in our program. So let's see the second one program. In that program we just display the factorial of number. Earlier my video lecture I just explained the applet life cycle. In that applet life cycle there is a one method that is nothing but the init method, and init method is used for initializing the object or initializing the applet. So here we are going to use the init method. For what purpose? For calculating the factorial of a number, which is we already declare here. Okay, so हमने यहाँ क्या किया है? Just first what is the first step for creating the applet? We need to import the AWT and applet package. Here we are importing those AWT and applet package here. Then next we have to create the subclass of applet. Here class fact app, it's the name of that particular applet. How we can recognize it? It is a subclass by using the extend keyword. हमने extend किया है, किससे extend किया है? applet से extend किया है. ये कहाँ से आया? तो इस पैकेज से आया. ये क्लास हमने यहाँ लिखा है, that's why it is a subclass of an applet, so that we can use the features which is provided by the applet class. So here we have to override the method init and paint. So before that we need to declare the variable. तो ये डिफरेंस होगा कि हम एप्लेट में वेरिएबल किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था. सिमिलरली वी कैन
declare, initialize the variable here also. We need to use those data type which is previously defined in our first unit and first unit in second unit. जो भी डेटा टाइप हमने वहाँ पे पढ़ा है वो सारा डेटा टाइप हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, इनिशियलाइज द वेरिएबल एंड providing value to that particular variable. So here we use the init type, that means the integer type fact. ये variable का नाम हो गया, उसे हमने सिर्फ 1 से क्या किया है, initialize किया है. Then again I just define the I. ठीक है, तो इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल हमने यहाँ लिखे हैं. ये कहाँ लिखे हैं? क्लास में लिखे हैं, है ना, किसी मेथड में नहीं लिखे, क्लास में लिखे. क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप होगा वो स्कोप थ्रू आउट दी क्लास होना चाहिए. कहाँ तक होना चाहिए? यहाँ तक. क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल हम 2 मेथड्स में यूज़ करने वाले हैं. कौन कौन से? तो इनिट मेथड में भी यूज़ करेंगे और पेंट मेथड में भी यूज़ करेंगे. अगर हमने ये वेरिएबल इनिट में दे दिए तो हम पेंट मेथड में उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर पाएंगे. Okay, so that we have to declare that variable as a class variable so that the scope of that particular variable must having the throughout the class. Okay, so here we declare 2 variable fact and I. Then override the init method. Here we just define and calculating the factorial as per we learn in second unit or first unit, like how we can using the looping structure in our Java code. So हमने यहाँ पे क्या किया है, एक particular factorial को calculate करने वाला जो methodology है वो यहाँ use की है. That is nothing but the for loop. In for loop we just calculating the factorial of 5. Okay, how it is recognized the factorial of 5 we are calculating here. तो ये हमने loop जो है, loop की limit जो है वो 5 लगाई है इसलिए. After that we just calculating the factorial by using the formula fact is equals to fact into I, so that it will calculate the factorial. How we can print it? Okay, यहाँ तक के तो समझ में आया कि calculation तो हो गया. How we can going to print it? So by using the graphics class, by using the paint method and graphics class, we are going to display our factorial with a drawstring method. Okay, so g.drawstring factorial of 5 यहाँ पे लिख लिया. ये क्या बन गया अपना? string. ये string. Okay, that means the message. but उसके आगे हमने लिखा है plus. क्या लिखा है? plus. so ये पूरी आपकी एक string बन गई. ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस लिखा है. ये प्लस इंडिकेट दैट पर्टिकुलर प्लस साइन इंडिकेट हियर द कॉन्केटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग एंड वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस फैक्ट. यहाँ पे हमने फैक्ट की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दी है. कहाँ प्रिंट की है? दिस इज नथिंग बट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है इन दैट प्रोग्राम. हमने एक मिस्टेक की है. कौन सी मिस्टेक हो सकती है? यस, we cannot define the applet tag here, so we need to define the applet tag like this. बराबर. यहाँ पे हम लिखेंगे कोड. क्या नाम होगा? fact app dot class file. yes, यहाँ पे हमें class file प्रोवाइड करना पड़ेगा. and then width 100 and height 100 and then closing applet where we insert that particular applet tag. एक तो हम प्रोग्राम खत्म होने के बाद, क्योंकि कमेंट लाइन दी है तो that could not be read by the Java compiler, so that don't bother it कि हमने यहाँ पे कहाँ लिखा है. हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या सेपरेट कोई फाइल बना के HTML की फाइल बना के उस पर भी लिख सकते हैं. तो इसे कंपाइल कैसे करेंगे, इसे रन कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दी जावा C compiler we need to execute this file for making the class file, and after that we need to require the applet viewer for displaying the applet. So applet viewer में जब हम लिखेंगे तब हमारा प्रोग्राम का नाम कैसे होगा? fact app dot java. तो जैसे ही हम applet viewer से इसे एग्जीक्यूट करेंगे एक विंडो जो है वो बनेगी
100 से, तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ होगा? क्योंकि हमने यहाँ पे x और y की जो कोऑर्डिनेशन दिया है, जो पिक्सल दी है वो है 100। हमारी विंडो भी क्या हो गई? 100। तो हमें एक तो विंडो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, या फिर जो कोऑर्डिनेट्स है हमने x एंड y के दिए हैं उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो रिमेंबर गाइस कि व्हेन वी यूज दी ऑल ग्राफिक्स methods for displaying something, we need to recognize all the x and y axis with width and height of that particular drawing segment। जो भी हम ड्रॉ करने वाले हैं, लाइक ओवल हो, आर्क हो, ठीक है, तो जो भी हम रेक्टेंगल हो, राउंड रेक्टेंगल हो, जो भी हम ड्रॉ करने वाले हैं उसकी पिक्सल साइज जो है वो हमें कैलकुलेट करके ड्रॉ करनी होती है, so that that particular thing will properly display on the applet। Okay, so this is nothing but the program, or this is nothing but the example where we displaying the integer value here। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हमें परम टैग से लेनी होती तो क्या करना होता? यहाँ पे हम वैल्यू जो है वो लेते लाइक 10, ठीक है, और जो वैल्यू आती यहाँ से n1 से जो वैल्यू यहाँ पे आती उसे हमें क्या करना होता? इंटीजर डॉट पार्स इंट जो है वो यूज करना होता। इंटीजर डॉट पार्स इंट अगर हम यहाँ लिखते, उसके अंदर लिखना पड़ता, जैसे हम रीड लाइन लिखते हैं तो रीड लाइन की जगह पे लिखना पड़ता पैरामीटर, गेट पैरामीटर, और इस गेट पैरामीटर में जो n1 आता है उसकी जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट होके यहाँ पे इंटीजर का वेरिएबल बनाना पड़ता। तो यहाँ पे हमें इंटीजर वेरिएबल मिलता और वो वेरिएबल हम यहाँ पे लिख सकते थे। ठीक है, तो ये सारा कोड कहाँ आता है? ये सारा कोड जो है गेट पैरामीटर वाला वो हमारा यहाँ आ जाता इनिशियलाइजेशन में, और ये जो कोड है परम टैग वो कहाँ आता? HTML फाइल में। तो ये भी कोड जो है वो HTML फाइल में चला जाता। ठीक है, सो लाइकवाइज वी कैन क्रिएट मच मोर एग्जाम्पल, मच मोर program for which having the concept of how we can display the integer value on the applet, okay, and how we can use the param tag or getting the input from the user। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड AWT पैकेज के थ्रू है जिसमें हम कुछ कंट्रोल्स को यूज करेंगे, बट दोज पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट इन अ प्रैक्टिकल वी हैव सम practical example where we getting the input from that particular control। okay, applet ही भी यूज़ किया है, frame भी यूज़ किया है, और उसमें controls भी यूज़ किया है जिसके थ्रू यूज़र का interaction जो है वो हो रहा है। अब यूज़र का interaction में कुछ वो enter करेगा और वो वैल्यू लेके हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, so that we can create much more example। हम इस तरह से भी प्रोग्रामिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। so next and very important topic, that is nothing but the file handling concept in Java। so it is also called as a streaming programming or also called as a file input and output। okay, so first कि Java having so much feature, कौन कौन से फीचर है? बहुत सारे फीचर्स है, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, रोबोस्ट है, देन सिक्योर्ड है ना, गार्बेज कलेक्शन है, देन जो भी वैल्यूज़ जो होती है वो स्ट्रिंग में होती है, और उसके थ्रू जो भी आउटपुट है वो आउटपुट जो रहेगा वो रिलायबल रहेगा। तो रिलायबिलिटी है, मल्टी थ्रेडिंग है, एप्लेट प्रोग्रामिंग है, पैकेजिंग प्रोग्रामिंग है, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स आर बिलोंगिंग बाय दिस पर्टिकुलर जावा प्रोग्राम। ये सारे फीचर्स है। तो ये सारे फीचर्स क्यों है? रिलायबल क्यों है? क्योंकि जो स्ट्रिंग आ रही है, जो चेकिंग हो रहा है गार्बेज कलेक्शन का, जो कंपाइलेशन हो रहा है वो स्ट्रिक्टली हो रहा है। तो कंपाइलेशन जब स्ट्रिक्टली होता है तो उसके बियॉन्ड कुछ मैकेनिज्म होगी। वो मैकेनिज्म क्या है? तो वो मैकेनिज्म ये है कि व्हेन वी एग्जीक्यूट अवर प्रोग्राम then the compiler will strictly check our program identifiers। identifiers means variables। तो उसमें एक स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट भी आ गया कि अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेके वो कैलकुलेशन करेगा। तो कैलकुलेशन कैसे रहेगा? रिलायबल रहेगा। कोई
और वैल्यू वहाँ पे नहीं आएगी, अगर वो वैल्यू लूपिंग में जा रही है तो हमारी सिस्टम भी क्रैश नहीं होगी. So those are the concept, those are the basic concept which is behind in our programming execution. So that in that we need to getting the concept of the streaming. Streaming का मतलब क्या होता है? तो streaming it is nothing but the bits and bytes collection. Okay, when we pass anything, when we getting the input from the user, हमने यूज़र से कोई भी इनपुट लिया तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में पहले होगा, उसके बाद में उसको बिट्स एंड बाइट्स फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर बिट्स एंड बाइट्स विल checked by the compiler, strictly checked by the compiler, and then only it will pass for the execution. ठीक है, अगर उसी में कुछ गड़बड़ होती है या गार्बेज कलेक्शन जैसा कुछ लगता है तो वहीं पे वो रिजेक्ट हो जाता है और हमें एक एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू एक मैसेज देता है कि ये वैल्यू जो है वो करेक्ट नहीं है. सो आगे तो उसके लिए जो स्ट्रीमिंग होता है, स्ट्रीमिंग इट इज़ नथिंग बट द बिट्स एंड बाइट्स कलेक्शन, वो मूव फॉरवर्ड होता है. Those particular things, these are nothing but the streaming concept. So basically when we getting the input and displaying the output, this is the concept of file input and output, and these all classes are belonging from the IO package. तो IO package क्या है? इनपुट एंड आउटपुट का कंसेप्ट है. तो सबसे पहले स्ट्रीमिंग क्लासेस जो है वो स्ट्रीमिंग क्लासेस हमें प्रोवाइड किए गए हैं और उसके बाद में फाइल के क्लासेस भी प्रोवाइड किए हैं. मीन्स IO पैकेज इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्लास कलेक्टर जिसको हम कहेंगे, जिसके पास में बहुत सारे क्लासेस हैं. IO पैकेज में बहुत सारे क्लासेस हैं जिसके थ्रू हम फाइल का इनपुट एंड आउटपुट या हमारे स्ट्रीमिंग क्लासेस का इनपुट एंड आउटपुट मैनेज कर सकते हैं. तो इनपुट एंड आउटपुट किस तरह से होगा? तो देखिए, सोर्स मीन्स एनी सोर्स जहाँ से इनपुट जा रहा है, लाइक कीबोर्ड हो, माउस हो, ठीक है, जहाँ से हम पर्टिकुलर सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं. सो दिस इज नथिंग बट द सोर्स विच इज इनपुट स्ट्रीम विच रीड द अवर प्रोग्राम. जो भी हमारा सोर्स रहेगा उस सोर्स से हम क्या करेंगे? उस सोर्स से इनपुट देंगे. तो कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया, कीबोर्ड से इनपुट आया. इनपुट स्ट्रीम क्या करेगी? रीडिंग द डेटा इनटू अ प्रोग्राम. जो भी डेटा आ रहा है उसे रीड करेगा. रीड करने के बाद में प्रोग्राम में जाएगा. देन प्रोग्राम विल राइट्स. एक तो प्रोग्राम में इनपुट होगा या प्रोग्राम से आउटपुट होगा. तो जो भी प्रोग्राम है वो प्रोग्राम राइट्स, ये जो भी रहेगा यहाँ से हमारा डेटा जो है आउटपुट स्ट्रीमिंग के थ्रू हमारे डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा. तो सबसे पहले हमारा डेटा जो आ रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, फिर उसको स्ट्रीमिंग में यानी बिट्स एंड बाइट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो बिट्स एंड बाइट्स फिर हमारे प्रोग्राम को जा रहा है. फिर से प्रोग्राम से हमारा बिट्स एंड बाइट्स का डेटा आ रहा है, फिर हमें उसे आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं, लाइक इंटीजर है या स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं और वो स्ट्रिंग जो है वो डेस्टिनेशन तक हमें आउटपुट दे रही है. This is nothing but the concept of the streaming, and when we reading the file, we need require the input stream, and when we write the file or writing the output or displaying anything, then we need to require the output stream here. So this is the concept. So for that system.in, in जो है वो input stream है, out जो है वो output stream है और ERR जो है वो error stream है. तो दोज आर दी क्लासेस सिस्टम के ही इन, आउट एंड एरर. ये ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड किए हैं IO ने. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो हम यूज़ करते हैं फॉर इनपुट, आउटपुट एंड एरर स्ट्रीमिंग के लिए. सो देयर आर सम इनपुट स्ट्रीम क्लासेस. तो स्ट्रीम क्लासेस भी है जिसमें फाइल इनपुट स्ट्रीमर है, स्ट्रीम क्लास है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, एरे इनपुट स्ट्रीम है, देन एरे आउटपुट स्ट्रीम. तो ऐसे बहुत सारे क्लासेस है जिसमें स्ट्रीम क्लासेस को इंक्लूड किया गया है, लाइक इनपुट स्ट्रीम क्लास. इसमें भी बहुत सारे क्लासेस है. अगेन आउटपुट स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम, कैरेक्टर रीडर एंड राइटर. So those are the stream classes provided by the Java IO package, and those all having some methods for manipulating our input and output stream in our program. तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस क्लास को हम यूज़ कर सकते हैं इनपुट स्ट्रीम. इससे पहले भी हमने इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास जो है वो यूज़ किया है बफर रीडर के थ्रू. तो बफर रीडर भी एक क्लास हो गया. सो दैट इट प्रोवाइड अस द मच मोर क्लासेस फॉर रीडिंग एंड राइटिंग the data from the source to the destination. It provide us the much more
methods for manipulating our input data and output data। उसके बाद भी फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट भी है। तो वो फाइल हैंडलिंग का क्या है, तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे, उसके बाद उसके कंटेंट को रीड करेंगे, उसके बाद उस फाइल में हम कुछ कंटेंट को राइट भी कर सकते हैं और उसके बाद हम उस फाइल को क्लोज करेंगे। तो दोज आर बेसिक 4 ऑपरेशन when we use the file handling concept। ये 4 ऑपरेशन को यूज करने के लिए अगेन इट प्रोवाइड अस द much more classes and the methods for the manipulating our file with the Java code। तो उसके लिए भी बहुत सारे concepts है, बहुत सारे methods है। You require just go through with the file handling concept। I already provide you the notes for that। You have to just look that particular notes and use that particular example which I given you to in the notes। Okay, so this is nothing but end the topic। This is nothing but the file handling concept in Java and managing the input and output of Java। which example means यहाँ का जो बफर रीडर का एग्जाम्पल है वो हमने पहले से ही ले लिया है। तो फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट हमने पहले से ही पढ़ लिया है, रैपर क्लास का कंसेप्ट हमने पहले से ही पढ़ लिया है। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर हमने पहले से यूज़ कर लिया है, साथ में स्कैनर क्लास का एग्जाम्पल भी हो चुका है। ठीक है, तो दोज आर नथिंग बट दी ऑल दी स्ट्रीम मैनेजिंग अवर इनपुट एंड आउटपुट। ओके, तो ये सारा कुछ यहाँ पे हो चुका है और वही एग्जाम्पल जो है वो पहले से ही हो चुके हैं। सो आपको करना क्या है, आपको बस ये करना है कि यहाँ पे जितने भी क्लासेस इन्होंने स्ट्रीम क्लासेस को दिया है, फाइल क्लासेस को दिया है, देन कैरेक्टर स्ट्रीम, उसकी जो मेथड्स है उसे बस याद रखना है, रिमेम्बराइज करना है, जिसके थ्रू आपको आगे जब भी ये प्रोग्रामिंग करनी पड़े। अभी तो हमारे फिलहाल छोटे छोटे कंसेप्ट की प्रोग्रामिंग होती है, बट जब प्रोजेक्ट की बात आती है, फाइल हैंडलिंग की बात आती है, तब ये सारे कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो सकते हैं या यूज़ में आ सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इस तरह का कंसेप्ट में भी जावा में हो चुका है और इस तरह के कंसेप्ट भी जावा में है। सो वी रिक्वायर टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मेथड्स विच इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लास। बस इतना ही आपको ध्यान में रहा तो भी चलेगा, वही यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम जो है आपके बना सकते हैं। सो दिस इज़ ओके फॉर टुडे। Thank you।